Good morning, students. Now we are going to start our next chapter, chapter number 2, Freedom, from Political Science, book number 2. Okay, students, you know the meaning of freedom. Freedom means no restrictions, absence of restriction. It is known as freedom. Okay, students, but we must learn the broad meaning of freedom. First of all, we must learn the word meaning of freedom. First of all, liberty. The word liberty is derived from the Latin word liber, which means freedom. Latin word liber से liberty बना है और उस liber word का meaning होता है freedom. Okay? अब it is the word to word meaning of freedom. Now what is the broad meaning of freedom? So students, two dimension of liberty is there. First of all, liberty means the absence of constraints. Absence of constraints means absence of restrictions. Restrictions नहीं, प्रतिबंध नहीं हो, it is known as freedom. Okay. अब what is the meaning of liberty means the absence of constraints? It means freedom is said to exist when external constraints on the individual are absent and she is free and able to make independent decisions. Okay, it means external constraints. It means बाहरी प्रतिबंध, कंट्रोल नहीं होना चाहिए और न ही इंडिविजुअल कंट्रोल, यानी न कोई व्यक्ति किसी को कंट्रोल करे और न किसी तरीके का बाहरी कंट्रोल हो. नॉन उसे हम क्या कहेंगे, और आदमी क्या कर पाए कि वह फ्रीली इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजन ले सके. ठीक है, एक तो ये मीनिंग हुआ. सेकंड थिंग, दूसरा इसका डायमेंशन क्या है कि इट इज आल्सो मीन्स टू डेवलप द पोटेंशियल एंड क्रिएटिविटी ऑफ ए पर्सन. कि अगर किसी व्यक्ति में पोटेंशियल है या उसकी स्किल है कोई, तो आदमी बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के उसे डेवलप कर सके. ओके, इसका मीनिंग क्या हुआ? इट मीन्स फ्रीडम इज आल्सो अबाउट एक्सपेंडिंग द एबिलिटी ऑफ पीपल to freely express themselves, okay, and develop their potential. He or she can express themselves without any obstacle. Okay, and there must be opportunities through which he or she develop their potential. Freedom is the condition in which people can develop their creativity and capacity. In other words, we can say that what is the meaning of freedom? Freedom is the condition in which people can develop their creativity and capacity. कि people जो है अपनी creativity और capacity को develop कर सके, वही उसकी freedom है. So students, we saw the two aspects, two dimensions of liberty or two dimension of freedom. Okay, first was liberty means the absence of the constraints, कि constraints नहीं होने चाहिए, किसी तरह के प्रतिबंध नहीं हो, वो फ्रीडम है. सेकेंड वाला क्या था? इट इज आल्सो मीन्स टू डेवलप द पोटेंशियल एंड द क्रिएटिविटी ऑफ ए पर्सन, कि एक पर्सन को फ्री किया जाए ताकि वो अपनी क्रिएटिविटी को डेवलप कर पाए, उसके अंदर जो स्किल है उसे डेवलप कर पाए. ओके, मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, ऑब्स्टेकल जो है वो नहीं होना चाहिए. स्टूडेंट्स, इन योर बुक, इन योर एनसीईआरटी बुक, देयर वर टू एग्जाम्पल्स अबाउट टू पर्सन्स. दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, टू पर्सन्स की स्टोरीज हैं इसमें. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस नेल्सन मंडेला एंड देन आंग सान सू की. ओके स्टूडेंट्स, a book, Long Walk to Freedom. It is autobiography of नेल्सन मंडेला. नेल्सन मंडेला की ये आत्मकथा है और इसमें उन्होंने
क्या स्ट्रगल किया था फ्रीडम के लिए, वो उन्होंने खुद ने लिखा है। ये उनकी आत्मकथा है, मतलब कि ऑटोबायोग्राफी है। इन दिस बुक he talks about his personal struggle against the apartheid. Student, remember this word, apartheid. Okay, discrimination on the basis of race and color. Race and color. In this book, he talks about his personal struggle against the apartheid regime in South Africa, discrimination based on their race and color. Okay, discrimination बेस्ड ऑन देयर रेस एंड कलर, कि रेस एंड कलर के आधार पर जो भेदभाव था, उस भेदभाव के खिलाफ इन्होंने जो कदम उठाए, जो इन्होंने स्ट्रगल किया, उसके बारे में इन्होंने इस बुक में लिखा है। ठीक है। ही स्पेंट 28 ईयर्स इन जेल, अपनी जिंदगी के 28 ईयर्स इन्होंने जेल में बिताए। फॉर हिम इट वॉज ए स्ट्रगल अगेंस्ट अनजस्ट कंस्ट्रेंट्स, कि इनके लिए ये लड़ाई क्या थी, ये स्ट्रगल क्या था कि अनजस्ट कंस्ट्रेंट्स, मतलब कि अन्यायपूर्वक क्या लगाना था, प्रतिबंध। ठीक है, उनके खिलाफ इनकी ये एक स्टेप था, ये एक लड़ाई थी। तो हमें क्या याद रखना है, ये नेम आपको जरूर याद रखना चाहिए इसमें से, कि नेल्सन मंडेला की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ओके, और क्या किया इन्होंने, देखो 28 ईयर्स इन्होंने वहां गुजार दिए। स्ट्रगल टू रिमूव द ऑब्स्टेकल्स टू द फ्रीडम ऑफ ऑल द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका के सभी लोगों के लिए जितने भी फ्रीडम में ऑब्स्टेकल्स थे, यानी बाधाएं थी, उनको हटाने के लिए इन्होंने स्ट्रगल किया। नाउ द सेकंड केस इज आंग सान सू की, और इनकी जो आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम फ्रॉम फियर। ठीक है। Gandhiji's thoughts on non-violence have been a source of inspiration for Suu Kyi. It means Aung San Suu Kyi followed the ideology of Gandhiji. गांधी की जो आइडियोलॉजी थी नॉन वायलेंस, उनको उसे फॉलो करती थी। शी रिमाइंड अंडर हाउस अरेस्ट इन म्यांमार, सेपरेटेड फ्रॉम हर चिल्ड्रन, unable to visit her husband when he was dying of cancer because she feared that if she left Myanmar she would not be able to return. Okay, कि क्या हुआ, गांधी जी क्या नॉन वायलेंस की जो आइडियोलॉजी थी ये उनको फॉलो करते थे। ठीक है, और इनको क्या किया गया, हाउस अरेस्ट किया गया, नजरबंद रखा गया म्यांमार में। ठीक है, और इनके बच्चों से अलग रहे। जब इनके पति कैंसर से पीड़ित थे और उनकी मौत हो गई, ये वहां नहीं जा सके। क्यों नहीं जा सके, बिकॉज शी फियर्ड दैट इफ शी लेफ्ट म्यांमार शी वुड नॉट बी एबल टू रिटर्न, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर उन्होंने म्यांमार एक बार छोड़ दिया तो वो वापस वहां रिटर्न नहीं हो पाएगी। उन्होंने कहा, वो कहते थे क्या, कि she says for me real freedom is freedom from fear. उन्होंने कहा कि मेरे लिए रियल फ्रीडम क्या है, फ्रीडम फ्रॉम फियर, एंड अनलेस यू कैन लिव फ्री फ्रॉम फियर यू कैन नॉट लिव ए डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ। और जब तक आप फियर, डर से मुक्त नहीं होंगे, आप एक आत्मसम्मानपूर्ण जीवन नहीं जी सकते। इसलिए लिबर्टी क्या थी इनकी नजरों में, फ्रीडम फ्रॉम फियर। ओके स्टूडेंट्स, देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लिबर्टी, देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रीडम, अलग अलग तरह की फ्रीडम होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटिकल लिबर्टी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल लिबर्टी? पॉलिटिकल लिबर्टी मीन्स वी कैन कास्ट आवर वोट टू इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव, फर्स्ट ऑफ ऑल। देन even we can participate, we can be a leader। ठीक है, हम लीडर बन सकते हैं अगर हमें किसी ने चुना है, हम इलेक्शन लड़ सकते हैं। ठीक है, तो वो पॉलिटिकल लिबर्टी हो गई। सेकंड थिंग, नेशनल लिबर्टी। नेशनल लिबर्टी मीनिंग एक नेचुरल लिबर्टी को हम नेशनल लिबर्टी की, जिस देश में हम पैदा हुए हैं वो हमारा
देश है, वहाँ से हमें कोई नहीं निकालेगा, वहाँ हमारे साथ भेदभाव नहीं होगा, वहाँ हमें अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। नाउ इकोनॉमिक लिबर्टी, इट मीन्स वी कैन अर्न आवर लाइवलीहुड। ठीक है, हम किसी भी तरह से किसी भी तरह मीन्स जो इनलीगल वर्क है वो नहीं, जो लीगल काम है उससे हम हमारी अर्निंग कर सकते हैं, उसमें हमें कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, रिसोर्सेज हमें अवेलेबल कराए जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज अर्निंग की हमें अवेलेबल कराई जाएगी। ठीक है, सिविल लिबर्टी, नागरिक है हमें सिविल लिबर्टी मिलेगी। नेचुरल लिबर्टी, ठीक है, इट मीन्स जब हम मान लीजिए बच्चा पैदा होता है, इट मीन्स ये है कि जब वो देश में पैदा हुआ उसका जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज या देश के जो भी सोर्सेज है उन सब पर उसका जन्मसिद्ध अधिकार होता है। ठीक है, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ लिबर्टी और फ्रीडम। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कि प्रतिबंध जो हैं नहीं होने चाहिए, वही चीज फ्रीडम होती। पर क्या अगर हमारी फ्रीडम पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए जाए तो क्या वो हमारे हार्मफुल, हमारे कंट्री के लिए, हमारे लोगों के लिए हार्मफुल नहीं हो सकती हैं। ठीक है, फिर क्या किया जाएगा, लोग उसका इनलीगल बेनिफिट लेंगे कि हमें आज़ादी है, हम कुछ भी कर सकते हैं। मान लीजिए रोड पर चलने की आज़ादी है तो हम कैसे भी चल रहे हैं, हम कैसे भी व्हीकल चला रहे हैं। ठीक है, हमें रहने की आज़ादी, साहब हम कहीं पे भी मकान बना लेंगे, दूसरे के मकान में घुस जाएंगे। ठीक है, तो ये इसको आज़ादी नहीं कहते। तो इसीलिए कुछ जगहों पर क्या होना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन या कंस्ट्रेंट्स होना जरूरी है, प्रतिबंध होना जरूरी है आज़ादी पर भी। तो हम कैसे प्रतिबंध लगाएंगे साहब, क्या अधिकार है हमें लगाने का? तो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल में कम फ्रॉम डोमिनेशन एंड एक्सटर्नल कंट्रोल। दो तरीके से रेस्ट्रिक्शंस हो सकता है कि या तो किसी आदमी, या तो कोई आदमी करे, जैसे मान लीजिए डिक्टेटर है या किंग है, वो रेस्ट्रिक्शन लगा दे, या एक्सटर्नल कंट्रोल। एक्सटर्नल कंट्रोल कौन करेगा? गवर्नमेंट। एक्सटर्नल कंट्रोल किसके द्वारा किए जाएंगे? गवर्नमेंट। एंड डोमिनेशन, कोई डिक्टेटर है या जैसे उसने कह दिया कि भाई मेरे देश में इस तरह से आपको रहना है, जैसे आपके पहनावों को लेकर के कह दिया कि आपको इस तरह का पहनावा पहनना है। जैसे चाइना में होता है कि चाइना में, जैसे क्या कहूँ मैं आपको, कि मुस्लिम महिलाओं को बुर्का नहीं पहनने दिया जाता, मुस्लिम लोगों को जो है दाढ़ी नहीं रखने दी जाती है। तो वहाँ वो डोमिनेशन किसका है? वहाँ उस व्यक्ति का डोमिनेशन है। ठीक है, सच रेस्ट्रिक्शंस में बी इम्पोज्ड बाय फोर्स। कुछ रेस्ट्रिक्शंस बाय फोर्स होते हैं और दे मे बी इम्पोज्ड बाय ए गवर्नमेंट थ्रू लॉज, और कुछ जो है कानून बना करके इम्पोज किए जाते हैं, लगाए जाते हैं। बट कंस्ट्रेंट्स ऑन फ्रीडम कैन आल्सो रिजल्ट फ्रॉम सोशल इनइक्वलिटी। परंतु कभी कभी क्या होता है, सोशल इनइक्वलिटी से भी ये कंट्रोल होते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल दूं मैं आपको, जैसे एससी या एसटीज है, तो एक समय हुआ करता था हमारे देश में जब उनके ऊपर कई सारे रेस्ट्रिक्शन की, आप इस कुएं से पानी नहीं ले सकते हैं, आप मंदिर में नहीं जा सकते हैं। तो वो सोशल इक्वलिटी जो होती है वो भी क्या करती हैं, कंस्ट्रेंट्स लगा देती हैं। अब यहाँ पर एक चीज सामने आती है कि फ्री सोसाइटी क्या होती है। तो अ सोसाइटी दैट इनेबल ए पर्सन टू परस्यू हिज हर इंटरेस्ट विथ मिनिमम कंस्ट्रेंट्स, कम से कम प्रतिबंधों के साथ। ए सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी जहां पर एक आदमी के इंटरेस्ट पर कम से कम प्रतिबंध लगे, वही सोसाइटी क्या हो गई, उसी सोसाइटी को हम कहेंगे फ्री सोसाइटी। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक यू गॉट ऑल इट, एंड next video we will talk our next topic. Have a nice day.